Good morning, student. So in the previous video we already learned about the properties of the plane mirror, what is mean by the plane mirror and which are the properties of the plane mirror, how the image obtained by using the plane mirror, that we understood in the previous video number 1. Okay. After that, in this video we can identify the spherical mirrors. So what is the spherical mirror, how they form the image, what are the rules to form the image, that we will learn in this video. The first is the spherical mirror. So there are two types of the spherical mirror. The first is concave and the second is convex. Okay, the first is a concave mirror and the second is the convex mirror. अब ये concave mirror क्या होंगे उसको identify करेंगे. Now see, as the reflecting surface is like as a cave. देखो क्या दिख रहा है आपको, ये केव जैसा दिख रहा है, एक गुफा जैसा दिख रहा है. मीन्स यदि कोई रिफ्लेक्टिंग सरफेस एक गुफा जैसी है उसको हम कहेंगे कॉन्केव मिरर, और उसका एग्जैक्टली उल्टा क्या रहेगा, ये इस तरह से. सो दिस इज ऑफ योर कॉन्वेक्स मिरर. अब ये दोनों में कंफ्यूजन होता है कि कॉन्वेक्स कौन सा है और कॉन्केव कौन सा है. जहां पे केव है गुफा, जहां पे केव वो इस तरह से, मींस रिफ्लेक्टिंग सरफेस कैसा दिखना चाहिए, केव जैसा दिखना चाहिए, गुफा जैसा दिखना चाहिए. दैट इज ऑफ द कॉन्केव मिरर एंड दिस इज ऑफ योर कॉन्वेक्स मिरर. अब ये दोनों चीजें ध्यान में आ गई कि कॉन्केव मिरर किसको कहेंगे और कॉन्वेक्स मिरर किसको कहेंगे, दोनों ध्यान में आ गया. Now we will see about some terms which are related with the concave and convex mirror. Okay, now we can see the terms which are related with the concave and the convex mirror. सबसे पहला देखेंगे हम लोग पोल. Now as this is the mirror, this is the spherical mirror, its mid point, exactly mid point is considered as a pole. इसको क्या कहेंगे, पोल. तो ये क्या हो गया आपका पोल. पोल is nothing but the mid point of the curve path. जो कर्व पाथ है उसका exactly mid point जो रहेगा that is called as a pole. Means the pole is the center of the reflecting surface. ये जो रिफ्लेक्टिंग सरफेस है, ये रिफ्लेक्टिंग सरफेस का जो सेंटर रहेगा दैट इज कॉल्ड एज अ पोल. मींस ये यदि 10 सेंटीमीटर है तो यहां पे ये जो पॉइंट रहेगा, दिस पॉइंट इज कॉल्ड एज अ पोल एंड व्हिच इज अ डिस्टेंस 5 यूनिट. अब ये डिस्टेंस क्या रहेगा 5. तो दिस इज ऑफ योर पोल. ये ध्यान में आ गया पोल. अब देखेंगे हम लोग सेंटर ऑफ कर्वेचर. ये पोल ध्यान में आ गया, पहला हो गया पोल. पोल समझ गया, it is represented by P. The second is center of curvature. Center of curvature. Center of curvature and it is represented by C. अब देखिए, this is of your spherical part. So naturally this is the part of one sphere. ये जो रहेगा ये किसी न किसी स्फीयर का पार्ट्स रहेगा. तो ये हो गया यहाँ पे आपका, ये स्फीयर आ गया और ये स्फीयर का पार्ट है, ये छोटा सा पार्ट. वैसा ही दिस इज द पार्ट ऑफ द स्फीयर. ओके, सो नेचुरली द स्फीयर हैविंग सम सेंटर, हैविंग वन सेंटर and this center is represented by C. तो इसका भी सेंटर रहेगा C. So that is nothing but the center of curvature means क्या, the point or the center of the spherical part. Means the sphere, ये जिस sphere का part है उस sphere का center means क्या रहेगा, center of curvature. ध्यान में आ गया. What is meant by the center of curvature? Means this is the part of a sphere and the center of that sphere is called the center of curvature. Third देखेंगे रेडियस ऑफ कर्वेचर. तीसरा देखेंगे हम लोग रेडियस ऑफ कर्वेचर.
Now radius of curvature is nothing but it is the distance between center and the pole. ये सेंटर और पोल के बीच का जो डिस्टेंस है दैट इज कॉल्ड एज अ रेडियस ऑफ कर्वेचर, या फिर ऐसा भी बोल सकते हैं वो जो स्फीयर जो हमने बनाया है वो स्फीयर का रेडियस एंड ए रेडियस ऑफ कर्वेचर। सो रेडियस ऑफ कर्वेचर मींस क्या? इट इज द डिस्टेंस बिटवीन सेंटर ऑफ कर्वेचर टू द पोल। ओके, आफ्टर दैट प्रिंसिपल एक्सिस, द फोर्थ पार्ट इज, यहां पे दिखता है, यहां पे the fourth is principal axis। principal axis, अब ये principal axis क्या होता है? It is the line passing through the diameter, or we can say that it is the line which is passing through the points C and P। ऐसी लाइन जो सेंटर ऑफ कर्वेचर और पोल से जा रही है, that line is called as a principal axis। so this is of your principal axis। means principal axis means क्या हो गया? ऐसी लाइन कि जो सेंटर ऑफ कर्वेचर और पोल से जाती है, that is called as a principal axis। and after that principal axis we consider the focal length। principal axis के बाद principal focus। fifth point is principal focus। ये प्रिंसिपल फोकस क्या होता है? जब लाइट आ गई, इस तरह से लाइट आ गई, और लाइट आने के बाद इफ इट इज पैरेलल आने के बाद जहां पे सभी लाइट इंटरसेक्ट करती है, मींस जिस पॉइंट में सभी लाइट इंसिडेंट होने के बाद में रिफ्लेक्शन के बाद जहां पे मीट होती है, मींस द लाइट्स वेयर मीट ईच अदर, दैट पॉइंट इज कॉल्ड एज अ प्रिंसिपल फोकस। मींस ऐसा पॉइंट कि जहां पे रिफ्लेक्टेड रे मीट होती है, मींस ऐसा पॉइंट जहां पे रिफ्लेक्टेड रे मीट होती है, दैट पॉइंट इज कॉल्ड एज अ प्रिंसिपल फोकस एंड इट इज रिप्रेजेंटेड बाय एफ। तो हियर आल्सो द प्रिंसिपल फोकस इज दिस। ओके, क्योंकि लाइट आएगी इस तरह से, तो ये इस तरह से आएगा। ओके, सो दिस इज ऑफ योर प्रिंसिपल फोकस। तो ये बनेगा आपका प्रिंसिपल फोकस इन दिस वे, in this way this is the principal focus। got it? means the point at which all the reflected ray meet, that is called as a principal focus। after that focal length, sixth part is the focal length। focal length। ये focal length क्या होता है? क्या रहेगा focal length? it is the distance between the focus and the pole। फोकस और पोल के बीच का जो डिस्टेंस रहेगा, द डिस्टेंस इज कॉल्ड एज अ फोकल लेंथ, एंड फोकल लेंथ इज ऑलवेज रिप्रेजेंटेड बाय एफ, एंड एफ इज नथिंग बट द r upon 2। इट इज ऑलवेज द हाफ ऑफ द रेडियस। कैसा रहेगा ये? रेडियस का आधा रहेगा। रेडियस का क्या रहेगा? आधा रहेगा। प्रिंसिपल फोकल लेंथ इज ऑलवेज half of the radius। okay, after that the last is aperture। the seventh point is aperture means what? now as this is of your reflecting surface, this is represented by m1 m2। so this diameter, this m1 m2, यदि मैं यहाँ पे straight line बनाता हूँ, so this straight line, which one? ये यदि जो straight line है, ये जो स्ट्रेट लाइन रहेगा, दिस इज कॉल्ड एज अ अपर्चर। द डायमीटर ऑफ द स्फेरिकल पार्ट इज कॉल्ड एज अ अपर्चर। द डायमीटर ऑफ द स्फेरिकल पार्ट इज कॉल्ड एज अ अपर्चर। मींस सबसे पहले हमने देखा पोल का मतलब हो गया इट इज द सेंटर ऑफ द रिफ्लेक्टिंग सरफेस। सेंटर ऑफ कर्वेचर मींस जो रिफ्लेक्टिंग सरफेस है वो किसी स्फीयर का पार्ट है, और वो स्फीयर का जो सेंटर रहेगा, दैट इज द सेंटर ऑफ कर्वेचर। Radius of curvature means it is the line segment joining the center of curvature and the pole। the fourth is the radius of curvature के बाद में principal axis। the line which is passing through the center of curvature and the pole is called as a principal axis। after that principal focus means after the reflection where the point intersect each other, that point is called as a principal focus, and that point is always the midpoint of
C and P। ये CP जो सेगमेंट है, ये CP सेगमेंट का क्या रहेगा, वो मिड पॉइंट रहेगा। आफ्टर दैट फोकल लेंथ इट इज द डिस्टेंस बिटवीन द F and P। प्रिंसिपल फोकस और पोल इनके बीच का डिस्टेंस मींस प्रिंसिपल फोकल लेंथ, इट इज ऑलवेज half of the radius, and aperture is nothing but the diameter of the reflecting surface. Start. Now we can see that the tracing the image, rules for tracing the image, rules for tracing the image। यानी इमेज बनाने के लिए क्या रूल्स रहेंगे, दैट वी विल सी। क्या रूल्स होते हैं इमेज बनाने के लिए? सबसे पहला रूल, दिस इज ऑफ योर कॉन्केव मिरर। द फर्स्ट इज, ये हो गया आपका कॉन्केव मिरर, 1 to 1 अपन देखेंगे। दिस इज ऑफ योर कॉन्केव, केव है, और ये आ गया आपका कॉन्वेक्स, ये कॉन्वेक्स। सभी में ध्यान देंगे दोनों चीजों में, ओके। दिस इज ऑफ योर पी, ये आ गया आपका इन दिस वे, दिस इज P C F, P C F, ओके। द फर्स्ट पॉइंट, सबसे पहला, इफ द रे इज पैरेलल टू द प्रिंसिपल एक्सिस, यदि किसको पैरेलल है, प्रिंसिपल एक्सिस से यदि पैरेलल ले आ रही है, देन इट पासिंग थ्रू द फोकस। तो पहला रूल बन गया यहाँ पे, क्या रूल बन गया पहला, यदि कोई रे प्रिंसिपल एक्सिस को पैरेलल है तो वो कहां से जाएंगी, प्रिंसिपल फोकस से जाएंगी। ये ध्यान में रखिए, क्या, पैरेलल टू प्रिंसिपल एक्सिस, देन इट पासिंग थ्रू फोकस। कहां से जाएंगी, फोकस से जाएंगी। यहां पे भी वैसे ही, इफ इट इज पैरेलल टू द प्रिंसिपल एक्सिस, यदि वो प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल है, देन इट पासिंग थ्रू द फोकस। अब या तो ये डाइवर्जेंट लेंस है, सॉरी डाइवर्जेंट मिरर है यहाँ पे, देयरफॉर इमेजिनरी में इस तरह से आएगी, प्रिंसिपल फोकस से जाएगी। दिस इज ऑफ योर फर्स्ट रूल। क्या रूल है, parallel to principal axis, then it is passing through the principal focus। दूसरा एग्जैक्टली इसके उल्टा, दूसरा रूल, क्या रूल रहेगा दूसरा, द सेकेंड रूल इज, दोनों में मैं एक्सप्लेन करूंगा यहाँ पे। क्या रूल है दूसरा, चेक करो। दिस इज ऑफ योर प्रिंसिपल एक्सिस P, दिस इज C and F, P C F, okay। Now if it is passing through the principal focus, यदि कोई रे प्रिंसिपल फोकस से जा रही है, then it parallel to the principal axis। यदि प्रिंसिपल फोकस से जा रही है तो प्रिंसिपल एक्सिस को पैरेलल रहेगी। एग्जैक्टली इसका रिवर्स, कहां से जा रही है, प्रिंसिपल फोकस से जा रही है। चेक करो, जा रही है प्रिंसिपल फोकस से, तो कैसी रहेगी, ये पैरेलल रहेंगी। किसको पैरेलल, प्रिंसिपल एक्सिस। दूसरा ध्यान में आ गया, इफ इट इज पासिंग थ्रू द फोकस, देन इट इज पैरेलल टू द प्रिंसिपल एक्सिस। पहला रूल क्या बोला हमने, द फर्स्ट रूल इज, इफ the line, or we can say that if the ray is parallel to the principal axis, then it passing through the focus, and if it is passing through the focus, then it parallel to the principal axis। तो फर्स्ट वाला हमने रूल देखा है कि पैरेलल टू द प्रिंसिपल एक्सिस है तो पासिंग थ्रू द फोकस, और दूसरा हमने क्या देखा, पासिंग थ्रू द फोकस है तो पैरेलल, मींस एग्जैक्टली रिवर्स हो गया। तीसरा हो जाएगा यहाँ पे, इफ this is of your C, this is F, okay। Now if the incident ray is passing through the center of the circle, यदि वो center of the circle पे जा रही है center of circle, center से जा रही है center of curvature पे, then it reback, means वो कहाँ जाएंगी, वापस आएंगी, center of sphere से जाएंगी। means if the ray is passing through the center of curvature, then it is bounce back, same ट्रेस करेंगे, सेम इससे आएंगे। मींस जो वे से जाएंगी, जो रास्ते से जाएंगी,
उसी रास्ते से क्या होंगे, वो वापस आएंगे। वैसे ही यहां पर सिमिलरली हियर ऑल्सो सी, जो रास्ते से जा रही है उसी रास्ते से वो क्या हो रही है, वापस आ रही है। दिस इज द थर्ड रूल ऑफ ट्रेसिंग द रे। एंड द फोर्थ इज, यू नो वेरी वेल, दैट इज एंगल ऑफ इंसिडेंट इज इक्वल्स टू एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन। एंगल ऑफ इंसिडेंट इज इक्वल्स टू एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन। तो ये इंसिडेंट, एंगल ऑफ इंसिडेंट इज इक्वल्स टू क्या, एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन। सो दिस इज ऑफ योर फोर्थ रूल। तो थर्ड एंड फोर्थ, तो पहला रूल क्या दिया हमने, if a line is parallel to the principal axis then it passing through the focus. Second rule, if the line is passing through the focus then it is parallel to the principal axis after a reflection. The third is, if the line is, means if the ray, incident ray is passing through the center of curvature, then after reflection it is always passing through the center of the curvature, same thing. And the fourth is, angle of incident is equal to the angle of reflection. So here we learn, in this video what we learn here, we learn the terms related with the spherical mirror, and after that the rules for tracing the image. Because after the lesson, means after this video, in the third video we learn about the image formed by the कॉन्केव मिरर। कॉन्केव मिरर से कैसे इमेज बनेंगे वो देखेंगे, उसके बाद में उसके यूज देखेंगे, और कॉन्वेक्स से कैसे बनेंगे इमेजेस, दैट वी लर्न इन दैट वीडियो, इन द थर्ड वीडियो। ओके।